Okay, so in today's lecture, we will discuss about a very important and a very simple and a very common plant phenomena, that is transpiration. It is very important phenomena for the plants, because everything, even the absorption of the water, transport of the water, and many physiological functions like opening and closing of stomata, they all are dependent upon this process, the transpiration. क्या होता है transpiration बच्चे? What is the principle? Also water. Definition of transpiration. Loss of water from leaves by stomata. Loss of water from the stomata. Loss of water and through stomata. Okay, you are kind of right. Okay, थोड़ा सा modify करेंगे, otherwise इन्होंने सही बताया. See, the evaporation of the water through the surface of the leaves or through the tissues of the leaf, mainly the stomata tissue. Okay, the evaporation of the water from the plant by the tissues of plant, not only the stomata, some more tissues are there like lenticels, through which the transpiration occurs, or the cuticle itself. So mainly the maximum transpiration, up to 95% of the transpiration occurs through the stomata. Okay, so it is having the two principles. One is the diffusion, second one is the evaporation. Okay, so transpiration is based upon the two principles: the evaporation, that is changing of the water or the liquid into the gaseous state. Another one is the diffusion. Due to diffusion, transpiration takes place. Diffusion means the water move from its higher concentration to the lower concentration. Water having lower concentration in the free environment or the air that is present outside the plant, if it is very dry during the daytime, that is having low water concentration, and higher water concentration inside the leaves. So water diffuses out into the transpiration. This one is the first principle. Second one is the phenomena of evaporation. So transpiration is the evaporation of the water or the loss of water from the tissues of plant. Surface tissues होते हैं बेटा. ऐसा नहीं डायरेक्ट जाइलम से ही जो है पानी इवेपोरेट हो गया या लॉस हो गया, दैट इज ट्रांसपिरेशन. नो, ओनली द सरफेस टिश्यूज लाइक स्टोमेटा, क्यूटिकल और लेंटिसेल्स. क्लियर है ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन? Yes, sir. दिस इज द वेरी बेसिक थिंग. हम लोग जो है 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, द लॉस ऑफ वाटर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, so let's just talk about the magnitude of transpiration first. What could be the magnitude? परसेंटेज में बात नहीं करेंगे, रियल डाटा की बात करेंगे. मेज का कोई प्लांट, जी मेज, बॉटनिकल नेम होता है जी मेज, मक्का. ठीक है, मेज का प्लांट जिसकी लाइफ साइकिल 6 मंथ्स है सपोज, तो ड्यूरिंग 6 मंथ्स कितना वाटर ट्रांसफर कर देता होगा वो अपने पूरे लाइफ साइकिल में? कोई इमेजिनरी काउंट दे सकते हैं आप? कोई आइडिया? 6 लीटर तो कर ही देता होगा सर. लीटर में या केजी में? चलिए मैं बता रहा हूँ. 50 किलोग्राम ऑफ वाटर जो है ट्रांसफर कर देता है, दिस मच. लेकिन पता नहीं चलता कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इतना इवेपोरेशन हो जाता है प्लांट से. और मेज तो एक बहुत छोटा प्लांट है. एक बर्च ट्री की बात करें, इंडिया में नहीं मिलते, हो सकता है कुछ प्लेसेस पे मिलते हो. बर्च ट्री जो होता है वो जनरली एक दिन में 250 केजी, 250 लीटर तक पानी ट्रांसफर कर देता है एक दिन में. ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लीफ होते हैं उसके अंदर. इट इज हैविंग अ वेरी डेंस कैनोपी और डेंसिटी ऑफ लीव्स इज सो मच हायर. सो इट जनरली ट्रांसफर 250 लीटर्स और 250 kilograms of the water in a day. So the magnitude is very higher. If I talk about the percentage, if 100 gram water, say 100% water or 100 gram water is absorbed in the plants in one day,
सो व्हाट कुड बी द अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन? अगर 100 ग्राम पानी एब्जॉर्ब हुआ है तो कितना पानी ट्रांसफर हो जाएगा 100 ग्राम में से? परसेंटेज में बता सकते हैं, ग्राम में बता सकते हैं आप? यस, प्रियंका, अलका, एनीवन? कितने परसेंट वाटर ट्रांसफर हो जाएगा अगर 100 ग्राम जो एब्जॉर्ब हुआ है तो? कोई आइडिया बेटा? कुछ तो बताइए। 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 90 ग्राम, 99 ग्राम आउट ऑफ 100? यस, 50%. कितना? 50%. 50%. ओके, एनीवन एल्स? अश्वनी? Sir, 80 to 90. 80 to 90. See, up to 95%, even up to 98, 90 to 98% of the water absorbed during the day is transpired again. Only hardly 5% of the water is used by the plant itself. Up to 95% of the water generally transpires. Only 5% is used or utilized by the plant. So some scientists believe that it's a waste. The plant is having the water whether passively or actively. Okay, suppose it acquires 100 grams of water, 95% of the water is again transported into the environment through the process. So some believe it's a wasteful process. We can't say wasteful, but we can say it's a harmful process. Okay, but it is also essential. A term is used that is necessary evil. The transpiration is called necessary evil. Okay, necessary means it's necessary, it is required. Sir, Surely this procedure is required, and evil means sir, kind of a bad element. तो इसको आवश्यक राक्षस बोलते हैं. अगर ये नहीं होगा तो भी प्लांट का काम नहीं चल सकता, और होता है तो evil भी है. evil किस लिए बेटा? ये why it is said evil? necessary तो हमें पता है क्यों है. बहुत सारी चीजें रेगुलेट करता है. एब्जॉर्प्शन रेगुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट रेगुलेट करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेट करता है, एवरीथिंग. बट व्हाई दिस इज इवल? हार्मफुल इफेक्ट क्या है? व्हाट आर सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांसपिरेशन? सर ज्यादा पानी ट्रांसफायर हो गया तो फिर बॉडी में, क्या मैक्सिमम तो क्या हो गया? ट्रांसफायर हो तो गया. पूरे प्लांट में. यस बेटा, यू आर राइट. इविल इसीलिए है कि वाटर का लॉस कर रहा है. हो सकता है किसी सॉइल में वाटर है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से प्लांट ने एब्जॉर्ब किया वाटर. प्लांट के पास 100 ग्राम वाटर था, आज ही के दिन में सारा क्या हो गया? ट्रांसफायर हो गया. तो ये प्लांट जो है ड्राई हो जाएगा, क्योंकि अब सॉइल में तो पानी बचा ही नहीं. सो इट विल बिकम ड्राई और इसकी डेथ हो जाएगी कुछ दिनों के बाद अगर पानी नहीं मिलेगा तो या तो ये प्लांट एडेप्टेशंस डेवलप करेगा, एक दिन में तो डेवलप होंगी नहीं, इसीलिए इसको इविल भी कहते हैं. ठीक है, प्लांट को ड्राई कर देता है. चलिए, these are some facts or some definitions about the transpiration. Now we will talk about the types of transpiration. The transpiration of three types. One is the firstly we will talk about the negligible one, that is the lenticular transpiration. Second one is the cuticular transpiration. Third one is the main, that is the stomatal transpiration. Okay, as the name suggesting, lenticular transpiration means transpiration by the lenticels. Okay, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा लेंटिसेल्स भी क्या है.
The name suggests the transpiration by the lenticels. Cuticular transpiration means transpiration by the cuticle, and stomatal transpiration means transpiration by the stomata. Tomato. Okay. Now the thing comes is why the lenticels are undergoing transpiration? Why cuticle, which was meant for the prevention of transpiration, that is itself doing transpiration. वो चीज जो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए बनाई थी एडेप्टेशन, क्यूटिकल, वो खुद ही ट्रांसपिरेशन कर रही है. ठीक है. So firstly remember these three names. Let's just discuss them in detail. तीनों नाम याद हो गए. फर्स्ट की बात करते हैं लेंटिकुलर की. लेंटिसेल्स क्या होते हैं भाई? यू हैव स्टडीड द प्लांट एनाटॉमी इन थर्ड सेमेस्टर. ठीक है. आप में से कौन बताएगा व्हाट आर लेंटिसेल्स? देखिए लेंटिसेल्स क्या होते हैं. ये आपका कोई भी प्राइमरी प्लांट है, जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, तो प्राइमरी प्लांट में नॉर्मल प्लांट जब ग्रोथ थी उसमें जो नॉर्मल स्टेम था उसमें एपिडर्मिस थी. सबसे आउटर कवरिंग क्या थी? एपिडर्मिस. अब सबसे आउटर कवरिंग बार्क, या बार्क में ही एक यूनिट होती है पेरिडर्म, वो है एपिडर्मिस. सेकेंडरी एपिडर्मिस बन चुकी. सेकेंडरी एपिडर्मिस को बोलते हैं पेरिडर्म, क्योंकि इसका मास बढ़ा अंदर से. तो ये जो आउटर टिश्यूज थे, पहले एपिडर्मिस थी, ये रप्चर हो गई. ये रप्चर नहीं, इसका मतलब है ये मेरिस्टेमेटिक हो गई दोबारा. तो पुरानी एपिडर्मिस जब मेरिस्टेमेटिक हुई तो उसने एक टिश्यू बनाया. पुरानी एपिडर्मिस से एक नया टिश्यू बना, ग्रुप ऑफ सेल्स. पहले ये सेल्स परमानेंट थी. इसको बोला जाता है कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन. ठीक है बेटे. ये कॉर्क कैम्बियम क्या करती है? ये डिवाइड करेगी, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एपिडर्मिस से बना था. ठीक है. दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता था? डिवाइड करना. तो ये डिवाइड करेगी, ऊपर भी डिवाइड किया, नीचे भी. इसमें सेल्स भर दी इसने. ठीक है. पहले 10 कॉर्क कैम्बियम सेल्स थी, अब 100 ऑफ सेल्स प्रोड्यूस कर दी इसने बाय डिवीजन. अभी सारी मेरिस्टेमेटिक है, धीरे धीरे परमानेंट होंगी. ऊपर वाली जो सेल्स है ये परमानेंट हो जाती है कॉर्क सेल्स में. कॉर्क सेल्स में, ठीक है, हाईली कॉम्पैक्ट होती हैं. ये है कॉर्क सेल्स. एक लाइन अभी भी कॉर्क कैम्बियम खुद मेरिस्टेमेटिक रहता है. ठीक है. नीचे वाली मेरिस्टेमेटिक सेल्स परमानेंट हो गई कॉर्टेक्स की सेल्स में. इस कॉर्टेक्स को बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स. कॉर्क सेल को बोला जाता है फैलम, कॉर्क कैम्बियम को बोला जाता है फैलोजन, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फैलोडर्म. कॉर्क सेल्स, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म, इन तीनों को मिलके क्या बोलते हैं? पेरिड्रम या सेकेंडरी एपिडर्मिस. ठीक है. सेकेंडरी एपिडर्मिस यानी पेरिड्रम में जब हम फ्लोएम भी इंक्लूड कर लें, सेकेंडरी फ्लोएम, और कैम्बियम भी इंक्लूड कर लें, तो बोलते हैं बार्क. जो कि जो आपके वुडी प्लांट जो आपने कहा ना, उनमें बार्क होती है, छाल. ठीक है. अब देखिए सबसे आउटर लेयर है कॉर्क सेल्स. किसी भी बार्क की सबसे आउटर लेयर है कॉर्क सेल्स. जब कॉर्क सेल्स में ब्रेकेज आ जाती है बीच बीच में, ठीक है, तो कुछ जगह से ये ओपन हो जाती है, अदरवाइज बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज थी. ठीक है. इस तरह से हर एक प्लांट में, वुडी प्लांट में बार्क होती है सबसे आउटसाइड. बार्क में भी सबसे बाहर कॉर्क सेल्स होती हैं. और ये कॉर्क सेल्स बोटल कॉर्क नहीं है बेटा. बोटल कॉर्क अलग प्लांट होता है जो केमिस्ट्री में या तो वाइन के ऊपर कॉर्क लगी होती है, वो कॉर्क नहीं है. वो कॉर्क का प्लांट ही अलग होता है. इसमें बीच बीच में होल्स हो गए. ठीक है. इंटरसेलुलर स्पेस जनरेट हो गया. उन होल्स को बोला जाता है लेंटी सेल्स. क्लियर है? लेंटी सेल्स क्या होते हैं? Yes, sir. ड्यू टू द और ये होल्स क्या
thickness of अपने the आप होते हैं, हाँ जी, ये होल्स अपने आप हो जाते हैं। अपने आप नहीं होते, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, जैसे हवाएं चल रही है बहुत तेज या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो ये सेल्स फ्रीज होती हैं, धीरे धीरे अपना स्पेस छोड़ देती हैं। ठीक है, एक वर्ड आता है बेटे राइटिडोम। राइटिडोम क्या होता है? बार्क जब पुरानी हो जाती है ना, आप देखना उस पर से छाल उतरने लग जाती है। कई बार हम खुद भी उतारते हैं, किसी पेड़ के पास हम खड़े हैं तो उसकी बार्क को हम उखेड़ देते हैं, तो ओल्ड बार्क को, ओल्ड टिश्यूज धीरे धीरे डिसकॉम्पैक्ट हो जाते हैं और अपनी जगह छोड़ देते हैं, उसको राइटिडोम बोलते हैं। राइटिडोम जब बन रहा होता है उसी टाइम लेंटिसेल्स बनते हैं। क्लियर है? तो लेंटिसेल्स कहां बनते हैं? स्टेम में। स्टेम में आउटर थिंग्स में पोर्स हो गए छोटे छोटे, ठीक है, ये पोर्स ओपनिंग्स हो गए। अब अंदर है जाइलम, अब जाइलम से पानी थोड़ा थोड़ा बाहर आएगा, इंटरसेल्युलर स्पेसेस में डिपॉजिट होता रहेगा, यहाँ इंटरसेल्युलर स्पेसेस होंगे, ठीक है, वहां से धीरे धीरे इसको जगह मिल गई ना डिफ्यूज होने की, तो खुद स्टेम से भी ट्रांसपिरेशन हो जाता है, बट वेरी रेयरली एंड वेरी लेस देन 1%। अगर 100 ग्राम पानी प्लांट से उड़ रहा है, ट्रांसफायर हो रहा है, तो 1% से भी कम पानी लेंटिसेल्स के थ्रू ट्रांसफायर होता है, लेकिन होता जरूर है। अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है बट नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि क्यूटिकल से भी ट्रांसपिरेशन हो सकता है, एंड व्हाट इज क्यूटिकल, क्लियर है? सॉरी, लेंटिसेल नॉट क्यूटिकल, लेंटिसेल से भी ट्रांसपिरेशन होता है, और लेंटिसेल क्या है, ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. What was second one? Cuticular. कुछ प्लांट्स जो ट्रांसपिरेशन तो देखिए होगा, सन तो हमेशा आएगा, ठीक है, सन इज यूनिवर्सल, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो कभी कभी जहां सूरज नहीं पहुंचता वहां कवि जरूर पहुंच जाते हैं, अदरवाइज सूरज भी सब कहीं पहुंचता है, ठीक है, सन इज यूनिवर्सल। तो सन तो सब कहीं है तो ट्रांसपिरेशन तो होगा, लेकिन अगर वहां सॉइल में वाटर नहीं है, ठीक है, तो अडेप्टेशन जनरेट होती है। कुछ प्लांट्स में लीव्स जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं टेंड्रिल्स में या स्पाइन्स में, ठीक है, टू कट द एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्योंकि जितना ब्रॉड लीफ होगा, लमाइना जितना बड़ा होगा उतने ही ज्यादा स्टोमेटा होंगे, इस पे उतना ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए अडेप्टेशंस होती हैं। तो कुछ प्लांट्स में अडेप्टेशन क्या होती है, सपोज ये लीफ की एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस है, बीच में आपके टिश्यूज हैं, ठीक है, नीचे वाले पे स्टोमेटा भी होते हैं, अपर वाले पे स्टोमेटा नहीं होते जनरली मीजोफाइट्स में। तो इस एपिडर्मिस के ऊपर, ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए सन के, एक वैक्स की लेयर प्रेजेंट होती है, वैक्स विच इज अ लिपिड डेरिवेटिव, मोम की तरह से एक लिपिड सब्सटेंस होता है वैक्स, ठीक है, नेचर क्या है, लिपिड। तो इस एपिडर्मिस के ऊपर ये है क्यूटिकल। क्यूटिकल होती है बेटा बचाने के लिए, किसको, ट्रांसपिरेशन को बचाने के लिए। तो इसके थ्रू अगर ट्रांसपिरेशन हो जाए, यानी जो चीज बचाने के लिए बनाई गई थी अगर उसी से ट्रांसपिरेशन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं क्या, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो ये कब होता है, क्यूटिकल कहीं कहीं से डैमेज हो जाती है, सिंपली वैक्स की तो लेयर है, हो सकता है किसी इंसेक्ट की वजह से, वही बात है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जहां से क्यूटिकल डैमेज हो गई और फिर वहां से पानी लीक हो जाए, यानी ट्रांसपिरेशन हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अप्रोक्सीमेटली 5% तक ट्रांसपिरेशन खुद क्यूटिकल के थ्रू हो जाता है। ओके, Yes, sir. क्यूटिकल तो आई थिंक सभी को क्लियर होगी क्या होती है। Yes, sir. व्हाट वाज द लास्ट वन? थर्ड वन क्या था? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा क्या होते हैं, आई थिंक सभी को पता होगा, या कोई है जिसको नहीं पता स्टोमेटा क्या होते हैं? क्या रूट में स्टोमेटा होते हैं? क्या रूट या स्टेम में स्टोमेटा होते हैं?
बोलिए भाई, बोलते नहीं। स्टोमेटा क्या होते हैं, कौन बताएगा? सुजाता, दीक्षा 97, चलिए मैं मानता हूं आप में से किसी को नहीं पता स्टोमेटा क्या है ना, एनाटॉमी भी नहीं पढ़ी आपने, यही मान लूं? The pores present on the green part upper leaves में present होते हैं, stem में भी होते हैं मैक्सिमम, बट रूट्स में नहीं होते हैं। यस, स्टेम में एक्सेप्शनल केस होते हैं, अदरवाइज स्टेम में भी नहीं होते बेटे, ठीक है? कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें स्टेम में होते हैं बट लीव्स में ही होते हैं मेनली। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है ना प्लांट का, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एक तो होती है एपिडर्मिस, ठीक है? उसके अलावा क्यूटिकल भी हो सकती है, कुछ एपिडर्मिस में हेयर्स भी हो सकते हैं, कुछ में ट्रायकोम्स भी हो सकते हैं, और कुछ में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में स्टोमेटा भी हो सकते हैं। तो स्टोमेटा प्लांट के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, जरूरी नहीं सब कई हर किसी ऑर्गन में ये प्रेजेंट हो, कुछ ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, मेनली लीव्स में। सो दीज आर द माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स मेनली। अपर एपिडर्मिस में या लोअर एपिडर्मिस में, किसी में भी, या दोनों में, या किसी में भी नहीं, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है? स्टोमेटा इज नॉट अ सिंगल सेल, इट इज अ टिश्यू, बिकॉज the stomata is having guard cells. This is the stomal pore, the aperture surrounded by the two guard cells. Okay, guard cells are surrounded by the subsidiary cells or the accessory cells. So it is having a group of cells, that's why stomata is a tissue. Stomata is a tissue, epidermis is a tissue, ठीक है? जब टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर ये कुछ टिश्यूज हैं, स्टोमेटा, एपिडर्मिस, हेयर्स, ट्राइकोम्स, दीज ऑल आर टिश्यूज और द क्यूटिकल इन द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो अब इन स्टोमेटा के थ्रू अगर ट्रांसपिरेशन होता है तो उसको हम कहते हैं स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 95% of this transpiration occurs through the stomata, means it is the real transpiration. Cuticular is very less and the lenticular is even negligible. Most of the transpiration occurs through the stomata. ज्यादा से ज्यादा पानी लॉस ना हो, कम से कम पानी लॉस हो, इसी वजह से लीव्स में स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दी अपर एपिडर्मिस, ठीक है बेटे? टाइप क्लियर है तीनों? Yes, sir. Yes, sir. ट्रांसपिरेशन के फंक्शंस जो है जल्दी से मैं डिस्कस कर देता हूं। ट्रांसपिरेशन जो है बेटे वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ये हम सेपरेटली पढ़ेंगे, ये सब चीजें क्लियर भी हो जाएंगी फंक्शंस, ऑल द फंक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, स्टोमेटल मूवमेंट में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज में, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो है उसके लिए स्टोमेटा को ओपन होना पड़ेगा, एक्सचेंज करनी है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं ट्रांसपिरेशन की वजह से दिन के टाइम में, ठीक है? तो इन सब चीजों में ये हेल्प करता है। These are very basic functions, no need to study these functions because once we are done with the chapter plant water relations, there are many functions that transpiration perform and you will be aware of them. आपको अपने आप पता चल जाएगी, ठीक है? अब बात करते हैं क्वेश्चन पोर्शन की। एग्जामिनेशन में हमें तो सब्जेक्टिव पेपर लिखना है, एग्जाम में या तो इसके टाइप के ऊपर क्वेश्चन आता है या मोस्ट इंपॉर्टेंटली फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। मोस्ट प्रोबेबली 100% क्वेश्चन जरूर आता है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, ठीक है? कुछ फैक्टर्स मैं डिस्कस करता हूं, यू विल कंक्लूड दोस फैक्टर्स।
sir. ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होगा? अगर ह्यूमिड ज्यादा है एनवायरनमेंट तो ट्रांसपिरेशन पे क्या इफेक्ट होगा? कम होगा सर। आप में से होगा कोई सर। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा अटेंडेंस का और मुझे सेंड कर देना। दीक्षा आप ले लीजिए 97 दीक्षा। अभी आप अपने मोबाइल में 53 पार्टिसिपेंट्स राइट नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, 2-3 पेज में आ जाएगा एंड सेंड मी द व्हाट्सएप पिक, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज देना पिक। अभी ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स रह जाएंगे तो मैं सैटरडे को वीक के लास्ट में वेरीफाई कर दिया करूंगा कि आप उस दिन थे या नहीं थे, ठीक है? ओके दीक्षा, Yes, sir. चलिए ह्यूमिडिटी की बात करते हैं बेटा। ह्यूमिड अगर ज्यादा है, क्या बता रहे हो आप, तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा कम? कम होगा सर। Come on. यस, ये होगा सर। ट्रांसपिरेशन विल बी लोवर्ड। क्यों? देखिए सिंपल सी बात है, प्लांट के अंदर पानी है, हायर कंसंट्रेशन है। अगर एनवायरनमेंट ड्राई है तब तो पानी की कंसंट्रेशन बाहर कम मानी जाएगी। ह्यूमिडिटी का मतलब ड्राई नहीं है, इसका मतलब एनवायरनमेंट में भी वाटर वेपर्स हैं, तो प्लांट के अंदर से क्यों जाएंगे जब और एनवायरनमेंट ऑलरेडी हैविंग वाटर वेपर्स, व्हाई द वाटर वेपर्स ऑफ द प्लांट विल गो इनटू द एयर। इसीलिए ह्यूमिडिटी ज्यादा, ट्रांसपिरेशन कम। टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? टेम्परेचर ज्यादा तो ट्रांसलेशन भी ज्यादा ही होगा। हाँ? नॉर्मल टेम्परेचर ज्यादा होगा और अगर कम या ज्यादा करेंगे तब कम हो सकता है। यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा ट्रांसपिरेशन, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा ड्राई एनवायरनमेंट। मोर द ड्राई एनवायरनमेंट इज, इट इज हैविंग लेस वाटर कंसंट्रेशन, सो पानी अंदर से बाहर जाएगा ही जाएगा क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट ड्राई है एकदम, ठीक है बेटे? लाइट, लाइट अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा और टेम्परेचर ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा। लाइट का मतलब सनलाइट। We are only talking about the sunlight, not the artificial light like fluorescent or any other source of the light. अगर नेचुरल लाइट ज्यादा है तो ज्यादा टेम्परेचर होगा और ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है? कुछ और फैक्टर्स बताइए भाई, ये रब कर दूं तीनों? Yes, sir. Yes. Air in motion, that is wind. विंड वेलोसिटी अगर बहुत ज्यादा है, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, तो वो वेपर्स जो प्रेजेंट है एयर में उनको वो बहा के ले जाती है अपने साथ, यानी एयर को क्या कर जाती है, वो एयर में जो वेपर्स प्रेजेंट थे उनको बहा के ले गई, यानी एयर को क्या कर दिया, तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ज्यादा, ठीक है? दैट विल बी मोर ट्रांसपिरेशन। वाटर लॉस जो सॉइल है, सॉइल में वाटर ज्यादा है तब, अगर सॉइल में वाटर ज्यादा है तब क्या होगा बेटे? 55 पार्टिसिपेंट्स है भाई, तब आपने लिए होंगे, तब बेटा 53 थे। कौन ऐसे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है? चलिए कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेंगे वो तो। वाटर इन सॉइल का इफेक्ट बताइए। टाइम क्या हुआ है? 2:36। जल्दी बताइए बेटा, ये मीटिंग एंड होने वाली है। देखिए जब भी ये एंड हो जाए ये मीटिंग, आज इतना ही करेंगे हम, ये क्लास जब भी एंड हो जाए, ठीक है? बाकी फिर बेटा नेक्स्ट टाइम यानी कल डिस्कस करूंगा मैं बाकी फैक्टर्स। अगर पानी ज्यादा है सॉइल में, इट मींस वाटर इजीली अवेलेबल है, तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है? Yes, sir. आज बेटे इतने